पिछले दरबार विच असीं मथुरा जी दे सारे सवैये समाप्त कीते सन, जिसदी कि आखिरी तुक सी धरण गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रह्यो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तक हर। ता विचार कर रहे सन कि इसका जो संप्रदायिक भावार्थ है कि गुरु अर्जन साक्षात अकाल पुरख है, ये भावार्थ गुरबाणी की कसवटी ते पूरा नहीं उतरता। दरअसल मथुरा जी दस रहे हैं कि श्री गुरु अर्जन देव जी दे हिरदे विचों परमात्मा प्रतख प्रगट हो गया है। वो किस करके हो गया है? क्योंकि जेड़ा तरीका जेड़ी जुगती पहली पातशाही दे दर तो शुरू हुई सी, वही जुगती सारियां पीढ़ियां ने कमाई। उस तरीके दे नाल उन्होंने अपना जीवन बदलिया, जीवन जाच बदली, जिस ढंग दे नाल भगती मार्ग दी सही सही राह दिखाई गई सी। जिस भी व्यक्ति ने वो सही राह अपनाई, उहदे ते हुज्जत नहीं कीती, उहदे ते किंतु नहीं कीता, जिहदे बारे कि बाकियां बारे बाणी दे विच इशारा कीता सी। पुतरी कावल न पालियो कर पीरों कन मुरटिए। जिन्हां ने ते कन मोड़ के एक पासे नूं तुर गए, उन्हां दा कुछ नहीं सौरिया। पर जिन्हां ने वो गल कन राही सुन के हिरदे दे विच वसा लई, उन्हां दे नाल की होया? भन मथुरा कछ भेद नहीं। हुण इहदे विच कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं रह गया। काहदा फर्क नहीं रह गया? गुर अर्जन पर तक हर। गुर अर्जन जिहड़ा के पार्थी है, पार्थी तो भाव जिहड़ा अपने सारे ही दुश्मनां तो हमेशा निडर रहिंदा है। इसे करके गुरु अर्जन नूं पार्थ किया गया सी। पार्थ हो चाले नहीं, इसका विचार असीं पिछे कर आए हैं। उस पार्थ ने अपने अंतरीव सारे ही दुश्मनां नूं अपने वस विच कीता और उसके सदके अंदरों परमात्मा के दर्शन हो गए। अज असीं भट्ट हरबंस दे सवैये शुरू कर रहे हैं। तो जिहड़ी गल उपर कही गई है कि धरण गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रह्यो भर, ओ परमात्मा जिहड़ा धरती और आकाश और सब जगह ते छाया होया है, उस नूं अंदरों प्रगट करन दा तरीका गुरु नानक दे दर तो चलिया ते पंजां ही पीढ़ियां दे विच फैलदा गया। उसका जिक्र अगली तुक दे विच भट्ट हरबंस इस तरीके नाल करदे हन। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै। अजय
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਨ। ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਏ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤੁਕਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਏ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਅਜੇ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਈ ਕਿ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਗਰਾਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਗਰਾਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਿਖਾਈ।
और उसकी गवाही आई भट्ट हरबंस कोलों। अजे गंग जल अटल सिख संगत सब नहावे, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लियो। आ हो रहा किन्ना क्लैरिटी दे विच गल गई, कोई छड्डिया नहीं साडे मन दे लई सवाल छड्डिया नहीं जा रहा कोई भी। असीं आप सवाल वो कर लिए तो साडी मर्जी है, असीं आप उल्टे पासे चले जाइए, इन्हां शब्दां दे अखर उल्टे बना लिए तो यह साडी मर्जी है, सानू कोई रोक नहीं सकता। पर गल साफ जाहिर है, उपर यह गल कही अजे गंग जल अटल सिख संगत सब नावे। इस दी थां ते आ करन तो बगैर नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे, ये गल करन तो इलावा की कीता जा रहा है? अजे चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लियो। हुण जीवा दे उत्ते, हुण मूंह दे विच सवाए उसदी नाम जाप तो होर कुछ नहीं हो रहा। ते जिथे ये गल हो जाए कि सवाए शब्द की कमाई तो होर कुछ ना बचे, तो फिर की हो जाता है? अगली लाइन जो जवाब देंगे ने, गुर अर्जन सिरे शतर आप परमेश्वर दियो। हुण इसकी ट्रांसलेशन भी ऐसा कर ली है कि परमात्मा ने आप आके गुरु अर्जन के सिर से ताज रख दिता है। तो क्या साडे मन की मत वेखो कितने चली गई है। परमात्मा थले धरती से आके उन्हें छतर रख दिता है। ट्रांसलेशन की हुई है। दरअसल गल वो कह रहे जिथे नाम जपया जाएगा, सिर के उपर का इशारा करे, सिरे छतर। छतर की है? हुण 10वां द्वार खुल गया, परमात्मा की कृपा होगी। 9 दरवाजे जिहड़े सन उन्होंने काबू पा लिया, वो तो एनर्जी बाहर जानों रोक ली। जिस तरह कबीर जी ने किया, मूंद लिए दरवाजे बजिए ले अनहद बाजे। हुण अनहद दी नाद सुनाई दी गई, 10वां द्वार खुल गया। 10वें द्वार का खुलना सिर का छतर है। जो असीं कहने हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। असीं इहदी ट्रांसलेशन कर लगे हैं, सोचिया ही नहीं कि जिन्हों दुख आ रहा वो सिर ते किहदा हथ है। जे असीं ये ट्रांसलेशन कर लीए कि परमात्मा जी का हथ तेरा हथ जिस दे सिर ते है उन्होंने दुख नहीं आ सकता। इसका मतलब जिन्हों दुख आया है वो फिर हथ किसी होर दा हो गया, तो होर तो कोई है नहीं। मैं बहुविध पेखियो दूजा ना हीरी को, दूजा तो है ही नहीं। कौन हाथ रखेगा होर सिर ते? फिर तो दुख क्यों आ रहा? फिर नहीं, उसका भाव सी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसका तू 10वां द्वार खोल दिता है, वो तो सुखा दुखा तो पार हो गया ना। तो जिसका 10वां द्वार खुलिया नहीं होया, वो किहड़ी अवस्था विच है? बोल ना जाने माया मद माता मरना चित ना आवे। हाल ऐ होई है। जिहड़े उस अवस्था तो बाहर निकल गए ने, उन्होंने सिर ते छतर आ गया है, उन्होंने 10वां द्वार खुल गया है, उन्होंने तेरी कृपा हो गई है। पर जिहड़े दूसरे ने बोल ना जाने, उन्होंने तो जिहड़ा बोल उत्थे ले जा सकता सी, जिहड़ा अखर उत्थे ले जा सकता सी, उन्होंने तो पता ही कोई नहीं। बोल ना जाने, उसनूं जानता ही नहीं, उसदे वाल ध्यान ही नहीं। तो उहदे नाल की होया? कहते माया मद माता, माया के नशे में चूर हो गया। जो माया के नशे में चूर हो जिहड़ा इंसान, उहदा की हाल होंदा? कहते मरना चित ना आवे। उन्होंने तो हुण मौत भी याद नहीं रहिंदी। सो जिथे भी सिर का उपर का इशारा किया जा रहा है, सिर का उपर का इशारा जिहड़ा है वो 10वें द्वार वाल इशारा है। इस चीज़ को हमेशा लिए याद रख लो। उत्थे 10वें द्वार की गल हो रही है।
अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे, अजय चल सिर ढुल्ले। ना जिते जान वाला अजय कौन है? वो ना जिते जाने वाला कौन है? कि कोई है, परमात्मा। जबर सिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ। ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਵਾਰ ਉਸਦਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? गुरु अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। तो इसी का ध्यान रखो। परमात्मा ने आके कोई ताज नहीं पहनाया गुरु अर्जन देव जी को। सिर छतर तो मतलब है 10वां द्वार खुल गया, हुण 9 दरवाजे बंद ने, उन्हां दे विचों दी एनर्जी जाती नहीं। जदों उथों एनर्जी बाहर जानी बंद हो जाए तो भगत कबीर जी कहते ने, मूंद लिए दरवाजे बजीए ले अनहद बाजे। क्योंकि गुरु ने वो दस दिता सी, गुर दिखलाई मोरी। गुरु को यह भेद समझ आ गया सी कि किहड़े किहड़े रस्तियां थाई किस किस ढंग नाल तेरी जिहड़ी आत्मिक शक्ति है वो घटती जा रही है। अखां बाहर दिखदियां हन ते सुंदरता नूं वेख के वासना दे विचारां राही एनर्जी बाहर चली जाती है। कंन सुनता है, वो रस लैन लग पैंदा है, एनर्जी वापस चली खारिज हो जाती है। जीभा स्वाद लैंदी है, वो स्वादां दे विच ललचाण लग पैंदी है, एनर्जी बाहर नूं तुरनी शुरू हो जाती है। तो ये जिहड़ी एनर्जी जिस वेले सारे पासों रोक ली जाती है, तां फिर 10वां द्वार खुलता है, वो है सिर ते छतर झुलना। फिजिकल ताज की गल नहीं कि जो ट्रांसलेशन इत्थे लिखियां हुई ने कि गुरु अर्जन के सिर के उत्ते ताज रख दिता गया परमात्मा में आप आन के, ये लफ्जी मैनिया तो जरा बचो। अपने आप को जरा उस अवस्था तक वेखण की कोशिश करो जिस अवस्था ते भट्ट बैठे हुए उन्होंने ये बाणी आ रही है। क्योंकि असां इत्थे उही भाव लैके ते उसे दा ही प्रचार कर रहे हाँ, मगर असीं ये समझ नहीं रहे कि हरबंस भट्ट की कह रहा है। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। जो गल पहले भट्ट ने कही सी, वही गल अज हरबंस भट्ट दोहरा रहा है। वो कह रहा है, देखो जिस ढंग दे नाल नानक परमात्मा नूं मिलिया, मिले नानक, जिस जुगती दे नाल परमात्मा तक पहुंचण दा रस्ता लभ्या, किसने? मिले नानक। वो रस्ता भाई लैणे कोल गया ते वो अंग बन गया, अंगद बन गया। वो रस्ता एक बजुर्ग जिसनों के सारी उम्र अमरू अमरू कह के बुलाया जाता सी, वो परमात्मा दा दास हो के अमर अमर हो गया। मरन दे ते जीण दे रस्ते विचों आजाद हो गया। और ओही रस्ता गुर रामदास भाई जेठे नूं मिलिया ते ओ राम दा दास बन गया।
और ओही रस्ता हर पे गयो, परमात्मा तक जान दा ओही रस्ता। हरबंस जगत जस संचरियो, सो कवण कहे श्री गुरु मोयो। असी अपने पुरखां दे शहीदी दिवस मनाने और बाणी पूछ रही है तुहानू होश नहीं हैगी गुरु कदी मरदा भी है कि अज वो जींदे नहीं? तुसी शरीर दे नाल ही जुड़े बैठे हो, शरीर दा ही जन्म मनाउंदे पए हो, शरीर दा ही मरण मनाउंदे पए हो। सिख जगत विच ये प्रथा नहीं सी चल सकदी जे सानू इन्हां गल्लां दा समझ हुंदी ते। वेखो की कह रहे ने, हरबंस जगत जस संचरियो, जिसने सारे जगत दे विच एक अनोखा काम करके विखाया धरती दे उत्ते पहली बार। इकला हिंदुस्तान की गल नहीं, तुसी जूडाइज़म नूं लै लो, क्रिश्चियनिटी नूं लै लो, इस्लाम नूं लै लो, बुद्धिज़म नूं लै लो, सनातन धर्म नूं लै लो, किसी ने भी इक्के तरीके दे नाल दो ब्रह्म ज्ञानी पैदा नहीं किए। इत्थे 5 ब्रह्म ज्ञानी 100 साल तो घट के फासले में पैदा करके दिखा दिते गए। ये सारे जगत के लिए डेमोन्स्ट्रेशन है। सानू कोई पता ही नहीं लग रहा, ऐसी करके रहे हैं। और बाणी दे विच दर्ज किया गया है, हरबंस जगत जस संचरियो, सो कवण कहे श्री गुरु मोयो। किसी की हिम्मत किस तरह पैंदी पई है ये गल कहण दी कि गुरु मर गया? गुरु दे शब्द हुंदा, शरीर जम्मिया शरीर मर गया, वो गल सही है, पर गुरु दे शब्द है। ते गुरु दा पुरब किस तरह मना लिया तुसां? शहीदी पुरब ते ज्योति जोत समान दा पुरब ते असीं कई नाम रख के कई कुछ करते पे। और बाणी कह रही है ये मनमत है, ये शरीर नाल जुड़ना है, ये परमात्मा नाल जुड़ना नहीं है। और ये गल सिखाई गई सी, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया सी कि जदों 10वां द्वार खुल जाए तो हुण ज्योति दे नाल जोत एक हो जाती है। हुण मरण दा ते जीवन दा कोई काम नहीं रह गया। पर असां क्योंकि एक जिद फड़ लई है, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू। साडा ते वो हाल बन गया है कि जूक बाक्स दे विच चवानी भरो, हर वार इक्को ही गाना वजदा है, मैं ना मानू। क्यों ना मानू? गल की है? अरबी असी जेकर हिंदू धर्म दे विच करामातां होईयां ने तो साडे सिख गुरु करामातां नहीं कर सकते? असी कोई उन्होंने छोटे हैं? असी कोई उन्होंने घाटे हैं? और 10 पातशाहियां सानू ये कह के चलियां गईयां, 250 साल इक्को गल समझाई गई, वो गुरु शब्द है, शरीर नहीं हुंदा। शब्द ना जमदा है ना मरदा है। शब्द ते जीवन दे विच एक रेवोल्यूशन लिया दिंदा है, एक क्रांति लिया दिंदा है। तुसीं उस शब्द नूं पकड़ो ते सही। पर असां क्या, असीं ये गल नहीं मननी ते ओदा जिहड़ा दलील दे दी वो ऐस लाइन की ट्रांसलेशन करके दलील दे दी। दूजे सवैये दे विच शुरू विच हरबंस जी कह रहे ने, देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो। आ देखो जी, और ट्रांसलेशन लिखी हुई है कि गुरु महाराज स्वर्ग लोक विच गए और परमात्मा ने उन्होंने आप तख्त ते बिठा के उन्होंने सत्कार किया। है ना उन्होंने देवी देवतियों वाली गल। हुण इसका मतलब यह है कि हुण असीं परमात्मा नूं एक इंसान समझते हैं, उहदा कोई आकार समझते हैं, और अपने गुरुआं दा भी आकार समझने हैं। तो कहने जी देखो एक आकार दूजे आकार नूं मिलता है तो उहदी जिहड़ी है शोभा की जा रही है, इहदे च गलती की है? वो बोलिया एक मोमबत्ती दी लाइट
ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो। ऐ ओदी ट्रांसलेशन करते। देखो साडा की हाल हो रहा है, तो गल की जा रही है। वो कह रहे ने कि जितने दे जितने ब्रह्म ज्ञानी हैं ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देवपुरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਰਾਤ ਅਗਨ ਕਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ असली आनंद है। वो देवपुरी वर्गा स्वर्ग है। परमात्मा नू सिर्फ इको गल चंगी लगती है, मात लोग चो उठ रहे हैं कि नहीं? आप परमेश्वर भायो, ते परमेश्वर नू ये गल क्यों चंगी लगती है? कहते जिहड़ा आपा है उन्होंने परमेश्वर चंगा लगा, उन्होंने माया चंगी नहीं लगी। तो जे मैनू परमात्मा चंगा लगता है तो कुदरती तौर पर परमात्मा नू भी मैं चंगा लगन लग पवांगा। जे मैं परमात्मा नू भुलिया होया तो फिर की है? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन समय रो गल की है? ये मुश्किल की है समझने वाली? परमेश्वर आप नू चंगा लगा किसनू? इन्हां ब्रह्म ज्ञानियों नू। क्यों इन्हां ब्रह्म ज्ञानियों नू चंगा लगा? कहंदे ओहदा जिहड़ा है कि नाम ही नाम है सारे पासे। जदों है नाम ही नाम है तो परमात्मा ही परमात्मा। देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर भायो। इन्हां ट्रांसलेट करके परमेश्वर नू चंगा लगा। गल आप है, आपे पप्पे नू सियारी है, आपे अपने आप नू की होया? कहते परमेश्वर चंगा लगा। जदों परमेश्वर दे नाल जुड़ जाए तां फिर धरती दे उत्ते स्वर्ग है। जे परमेश्वर नाल टुटिया जाए तां धरती दे उत्ते नरक है। ना होर किते नरक बनिया होया, ना किते कोई स्वर्ग बनिया होया, ना कोई सिंघासन लगे हुए ने, ना कोई दरबार सजे हुए ने। इन्हां शब्दां दी पकड़ तो बचना है, ये चो ब्रह्म ज्ञान कढ़ना है। हर सिंघासन दियो, हुण इहदी ट्रांसलेशन कर दी कि हरि ने सिंघासन दिता है। गल बिल्कुल उल्ट है। उन्हां ब्रह्म ज्ञानियां ने अपने हिरदे नूं उसदा सिंघासन बनाया है।
आ जी थड़े बनाने वाली गाथा गुरु अमरदास जी की सुनते जे, वो आ थड़ा जे असा इटां दे थड़े बना लै, जिथे जाए बहे, किथे जाके बैठे, वो हिरदा जिहड़ा ओहदे लई बहन दा थड़ा बन गया है, उत्थे जाके मन बह जाता है। जे मन बह गया तो परमात्मा लिए थड़ा तैयार हो गया। तो ये सिंघासन गुरु अर्जन या गुरु रामदास का नहीं है, ये सिंघासन उन्हों का अपना हिरदा है, जिथे कि परमात्मा ने आके विराजमान होकर ते अपने आप को प्रगट कर दिता है। जाहिर हो गए परमात्मा किथे, हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बैठायो। असा ट्रांसलेट करती कि गुरु को बिठाया है, नहीं उथे परमात्मा को बिठाया है। श्री गुरु उस परमात्मा तह उस थान दे किथे, वो जिहड़ा हिरदा, वो जिहड़ा थड़ा बन गया है, जिथे हुण काम क्रोध लोभ मोह हंकार बिल्कुल उडारी लै जा चुके हैं, उथे हुण सत संतोख दया धर्म का प्रकाश है, उथे परमात्मा आके बैठा होया है। ये ब्रह्म ज्ञानियों की निशानी है। तो जिहड़ा परमात्मा हिरदे विच आके बैठ जाए, वो चेहरे तो प्रगट हो जाता है। जिस तरह साडे चेहरे तो साडा गुस्सा, साडा लोभ, साडी वासना, साडा मोह साडे चेहरे तो प्रगट हो जाती है। साडा सारिਆਂ ਦਾ तजर्बा है। तो जिस तरह जेकर वो परमात्मा उस हिरदे ते बैठ गया तो चेहरे तो प्रगट हो जाता, वो छुपाया नहीं जा सकता। हुण गुज्जी छानी ना ही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात, यदि ट्रांसलेशन कर दी कि वो कह रहे हैं कि गुरु नानक ने कृपा करके ते 6वें महल के घर बच्चा भेजा है। आ ट्रांसलेशन करते, वो शब्द सारा ही श्री हरगोबिंद साहब के जीवन नाल लगा दिता। नहीं भूलियो, बच्चों के जन्म के शब्द नहीं है, बच्चों के मरण के शब्द नहीं है, परमात्मा के नाल जुड़न दे, हंकार दे मरण दे, परमात्मा के प्रगट होने दे शब्द ने। जिथे भी ये गल आई, जित मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, उथे शरीर की मौत की गल नहीं हो रही। असा कहते जी मरने ही ते भाई ये पूर्ण परमानंद, बाणी कह रही है कि मर तो बाद उन्हें मिलना। ते बाणी कह रही है मोए होए जो मुक्त दयोगे मुक्त न जाने कोई अला। वो मुक्ति मर के लेनी है, मर के मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति जीवदियां जी लई जाती है। तो फिर वो किहड़े मरण की गल कर रहा है? वो हंकार के मरण की गल कर रहा है, वो मैं दी ईगो के मरण की गल कर रहा है, वो शरीर के मरण की गल नहीं कर रहा। जित मरने ते जग डरे, साडी आई साडी पहचान किते खत्म ना हो जाए, सानू यही डर रहता है। इसे करके जदों भी असी किसी देश विचों निकल के परदेश विच जाने, दूसरे मुल्क जाने, तो पहला अपने आप को कोई पहचानने वाला लभदे हैं। नहीं तो देश दूसरा, भाषा दूसरी, रिवाज दूसरे, इंसान परेशान हो जाता है। कोई पहचानने वाला नहीं कि तू कौन है। जिन्ना चिर कोई पहचानने वाला नहीं, उन्ना चिर हंकार सामने नजर नहीं आ सकता। इत्थे उन्हां दी गल कीती गई है जिन्हां ने अपने दिलों के थड़े दे उत्ते परमात्मा नूं बिठाउण दा इंतजाम कर लिया। देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बैठायो। काटे सो पाप 3 नरों के गुरु रामदास जिन पायो। हुण इहदी ट्रांसलेशन भी असा गलत की हुई है। गुरु रामदास नूं प्राप्त किया जा सकता है, शरीर के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं, इथे ये क्या जा रहा है, काटे सो पाप 3 नरों के गुरु रामदास जिन्ने पायो। जिस तरीके दे नाल
राम दा दास चौथी पीढ़ी बनी, उस तरीके नूं जिन्ने भी अपनाया ਉਹਦਾ ਕੀ हो गया? घाटे सो पाप तिन नरोगे। नैगेटिव एनर्जी भज गई। नैगेटिव एनर्जी भजदी कदों? कहता उदों पहला कदम चुकदियां ही नैगेटिव शक्ति जिहड़ी है वो भज जाती है। हर पैलड़ी लाभ पहला कदम, हर पैलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जीओ। ये तो पहला कदम है। उस रस्ते ते चल तो सही, नैगेटिव एनर्जी तेरे को भज जाएगी तो फिर की है? कहते दूसरी स्टेज ते जाके हर हर मीठा लाया। हुण नाम जिहड़ा जपना मीठा लगन लग पेगा। जिहड़ा थोड़ी बहुती तकलीफ है वो पहली पौड़ी विच ही है। जिस दिन जाप सिमरन बन गया उस दिन स्वाद आउण लग पैना नाम जपण दा। उन्ना चिर है जिन्ना चिर सिमरन नहीं बनता, दूजा कदम नहीं चलता। जिस दिन दूजे कदम से पैर रखिया गया नैगेटिव एनर्जी कोलों भज गई। हुण हर हर मीठा लाया। तो तीसरे कदम ते की है? हर तीजड़ी लाभ मन चाओ भया बैर आ गया बलराम जीओ। हुण पॉजिटिव चाओ, बैराग नैगेटिव, कहते हुण दोवें इकट्ठे होण लगे ने, एक बन लगे। तो जदों तीन दोवें इकट्ठे हो जाते हैं तो हर चौथड़ी लाभ मन सहज भया। क्यों? हर पाया बलराम जीओ। चौथे पद ते पहुंचे, सहज अवस्था आई, परमात्मा के दर्शन हो गए। ये चारे लावां चार कदम, जिस तरह चार खंड ने, धर्मखंड, ज्ञान खंड, सर्मखंड, कर्मखंड, उस तरह ये चार लावां ने। असीं इन्हां नूं किसी होर पासे ला दिता। बाणी का विआह की है जी? असीं गाने ना शब्द, विआह होवा मेरे बाबला, अगे की है जी? गुरमुखे हर पाया, है ना? आ जे विआह। जीव स्त्री का असली विआह एक है। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा, हमरे घरे आए राम भतारा। ओ पति घर आ गया है, अज वो ज्ञान एक मौका है, अज वो धन्यवाद करने का मौका है। पति परमेश्वर घर आ गया। इथे उस पति परमेश्वर की गल की जा रही है कि काटे सो पाप तिन नरहों के गुरु रामदास जिन्ने पायो। जिस तरीके नाल चौथी पीढ़ी राम दा दास बनी सी, जिसने भी वो तरीका पकड़िया काटे सो पाप तिन नरों के। तो की है फिर? शतर सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। असी इसकी ट्रांसलेशन कर दी कि शतर ते सिंहासन ते बैठन की थां जिहड़ी है सारी वो गुरु रामदास ने गुरु अर्जन को दे दी। ये नहीं गल हो रही। गल हो रही है कि जिस तरीके दे नाल राम दे दास ने शब्द का प्रचार किया सी, वो जिम्मेवारी हुण पंजवीं पीढ़ी नूं मिल गई। और उत्थे भी यही काम हो रहा जिहड़ा पहले सोईए च कह चुका है कि हुण वेदां दा विचार नहीं, हुण किसी पुराण का विचार नहीं। फिर देखो उस पहले सोईए की पहली लाइन नूं की कह रहे सन? अजे गंग जल अटल सिख संगत सब नावै, नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै। असी दी ट्रांसलेशन कर दी कि गुरु अर्जन अपने तख्त पे बैठा होया,
पुराणों का ते वेदां का प्रचार कर रहे। सिखां दे लई इक्को वेद है, इक्को पुराण है जिहदा प्रचार करना है, वो शब्द गुरु है। इत्थे ये कहा गया सी, अजे गंग जल अटल सिख संगत सब नाम है। गुरु के दरबार में यह गल हो रही है, जिहड़ा कदी ना जितया जाने वाला है उसके नाम के प्रवाह दे विच सारी संगत डुबी हुई है, बजाए इस दे कि नित पुराण बाजिए, बजाए इस दे कि रोज जगराते लगे रहन, वेदां दे नाम का प्रचार हो रहा। उही गल हरबंस भट्ट ने अपने आखिरी सवैये दे विच दोबारा दोहराई, काटे सो पाप तिन नरहों के गुरु रामदास जिन पायो छत्र सिंघासन पृथ्वी। तो सारी पृथ्वी की गल हो रही है, कली पंजाब की गल थोड़ी हो रही है। तो गुरु अर्जन तो पंजाब चो बाहर गए ही नहीं, गुरु नानक दे पंजाब चो बाहर गया, बाकी किसी गुरु ने यात्रा नहीं कीतियां। संगत जुड़न लग पई, जिथे संगत जुड़ती सी उत्थे नाम का प्रचार होने लग पिया। वो जिम्मेवारी हुण पंजवीं पीढ़ी ने संभाल रही। तो ये जिहड़ा 1409 पेज के उत्ते हरबंस जी का आखिरी सवैया है, इत्थे पंजवें महले के सारे सवैये अज समाप्त होंदे हन। भुलां चुका दी खिमा करनी, जो गुरु ने स्नेहा भेजा उस तरह तुहाडे तक पहुँचाया। ये विचार करदे होया जो खामियां गलतियां हैं वो तुसीं आप बख्श लैणियां। हुण अगले एतवार नूं नवीं जिहड़ी है लड़ी चलावांगे, क्योंकि ये हुण सारियां जिहड़ियां ने जिहड़े पिछले कीते हुए कुछ विचों रह गए हैं और सिख संगतां ने जिन्हां ने कि वो नोट किया है कि जी ये आ चीज़ मिसिंग है, चीज़ मिसिंग है, उन्हां दी असीं सारियां दी जिहड़ी है वो गैप फिलअप करांगे। अज इन्नी सेवा प्रवान करनी। हुण अगर किसी का कोई सवाल या किसी ने कोई विचार पेश करना है तो लाइनां अजे खुलियां हैं।